السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگلوس۔ باب نمبر 51۔ دن کے 12 بجے کا عمل تھا۔ بھری دوپہر تھی، گرمی بڑھ گئی تھی۔ شاداں کمرے میں تنہا تھی، باہر چلچلاتی دھوپ پھیلی تھی۔ شاداں کا یہ معمول تھا کہ رات بالائی منزل پر بسر کرتی، سورج غروب ہوتے ہی چھت پر چھڑکاؤ کر دیا جاتا۔ نوکر کمرے سے پلنگ نکال کر باہر چھت پر بچھا دیتے، ان پر اجلا بستر لگا دیا جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ ناشتہ اوپر ہی کی منزل پر کرتی تھی۔ دھوپ کی تمازت بڑھ جاتی تو پہر دن چڑھے نیچے چلی جاتی۔ وہاں بھی آرام کرنے کے لیے اس کا کمرہ مخصوص تھا۔ رحیم داد کوٹلہ ہرکشن میں موجود ہوتا تب بھی اس کے اس معمول میں فرق نہ آتا۔ رحیم داد ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا تھا۔ شاداں اس روز خلاف معمول بالائی منزل کے کمرے میں تھی۔ وہ نیچے جانے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک نوکرانی نے اطلاع دی۔ چودرانی، تجھے ملنے کوئی بندہ آیا ہے؟ مجھے ملنے کون آیا ہے؟ شاداں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں کون ہے۔ نوکرانی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنا نام لالی بتاتا ہے۔ لالی کا نام سن کر شاداں چونکی۔ اسے لالی کا آنا ناگوار گزرا، پیشانی پر بل پڑ گیا، چہرے پر ہلکی ہلکی جھنجھلاہٹ چھا گئی۔ اس نے سوچا لالی سے ملنے کا صاف انکار کر دے، اب وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ رحیم داد اسے سخت ناپسند کرتا تھا، اس کے نام سے بھڑکتا تھا۔ وہ رحیم داد کو ناراض کرنا نہ چاہتی تھی، مگر وہ لالی کو بھی ناراض نہ کر سکتی تھی۔ لالی اسے سکھ نہ دے سکا، لیکن اسے کبھی دکھ پہنچانے کی بھی کوشش نہ کی تھی۔ شاداں چند لمحے تذبذب کے عالم میں گم سم بیٹھی رہی، پھر اس نے نوکرانی سے کہا، اسے وڈے کمرے میں بٹھا دے، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گی۔ نوکرانی خاموشی سے مڑی اور واپس چلی گئی۔ شاداں نے گرمی کے باوجود سفید ریشمی چادر اوڑھی، جسم کے بالائی حصے کو اچھی طرح ڈھانکا، کمرے سے باہر نکلی، چھات عبور کی اور زینے کی سیڑھیاں طے کر کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ لالی کمرے میں موجود تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور میلا کچیلا تھا، چہرہ اور سر کے بال خاک دھول سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ تھکا ہارا اور نٹھال نظر آ رہا تھا، اس کے بشرے سے پریشان حالی آشکارا تھی۔ شاداں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چادر کے پلو سے بکل مار کر نصف چہرہ چھپا لیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور لالی کے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پلٹ کر نوکرانی کی جانب دیکھا، لسی لانے کی ہدایت کی، پھر لالی کی طرف متوجہ ہوئی۔ لالی کی آنکھوں میں حسرت و یاس تھی۔ اس نے کھوئی کھوئی نظروں سے شاداں کو دیکھا۔ شاداں اس سے آنکھیں نہ ملا سکی، فوراً نگاہیں جھکا دیں، آہستہ سے بولی، اب تو کیوں آیا ہے؟ چودھری کو پتہ چلے گا تو سخت ناراض ہوگا۔ میں تجھے یہی بتانے جیل گئی تھی، پر منع کرنے پر بھی تو نے میری بات نہ مانی اور یہاں چلا آیا۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس کے لہجے سے ناگواری عیاں تھی۔ تو نے اس روز میری پوری گل بات ہی کب سنی تھی؟ اپنی ہی کہتی رہی۔ لالی نے شکوہ کیا۔ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں چوری ڈکیتی کرنے کے جرم میں جیل نہیں گیا تھا۔ تجھ سے وعدہ کرنے کے بعد میں نے تو کبھی چوری ڈکیتی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ تجھے پتہ نہیں؟ مجھے پتہ بھی نہیں کرنا۔ شاداں نے اسے آگے بولنے کا موقع نہ دیا۔ تجھے جو کچھ بتانا تھا
उसी रोज़ मुझे बता दिया था। उसका लहजा तीखा हो गया। तू जेल क्यों गया? कैसे गया? मुझे अब इससे कुछ नहीं लेना। तू पहले मेरी गल तो सुन ले। लाली ने इसरार किया, मगर शादा ने इस दफ़ा भी उसे सफाई पेश करने का मौका न दिया। मैंने कुछ नहीं सुनना। इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो होना था हो चुका। उसके लबो लहजे में एतमाद पैदा हो गया था। उसने लाली को नज़र भर कर देखा। मैं अब चौधरी की घरवाली बन चुकी हूँ। उसके सिवा किसी और मर्द के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। सोचना भी नहीं चाहिए। लाली के चेहरे का रंग बदल गया। आवाज़ में तलखी पैदा हो गई। उसने नज़रें घुमा फिरा कर दरवाज़ों पर पड़े हुए खुश रंग पर्दे, फर्श पर बिछा हुआ नरम नरम कालीन और सोफ़े देखे। शादा का कीमती लिबास देखा। ऐसी शानदार हवेली में रहकर तू कुछ और सोच भी नहीं सकती। अब तू वड्डी ज़मींदारनी बन गई है, ऐश कर रही है। लाली के लहजे में तंज था, झुंझुलाहट और बरहमी थी। शादा ने इसे महसूस किया। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया, मगर उसने ज़ब्त का दामन न छोड़ा। खामोश बैठी रही, अपने रवैये से किसी रद्द अमल का इजहार न किया। लाली ने कदरे तवक्कुफ़ किया, फिर उसके होंठों पर ज़हरखंद नुमायाँ हुआ। लगता है तुझे चौधरी से भी प्यार हो गया है। हाँ, शादा ने उसकी जानिब देखे बगैर निहायत मुख्तसर जवाब दिया। ये बता, तेरा कब तक चौधरी से प्यार करने का इरादा है? उसके लहजे में तहकीर थी, तलवार की काट थी। तूने पहले बाले से यारी लगाई, उसके लिए अपने खसम को छोड़ा, घर बार छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा। फिर बाले से नाराज़ हुई तो उसका खून कर दिया, मुझसे यारी लगा ली। लाली के मुंह से बाले का जिक्र सुनकर शादा लरज़ कर रह गई। उसके बुशरे से टपकती हुई बरहमी काफूर हो गई। उसे तमाम अरसे में पहली बार अंदाज़ा हुआ कि लाली उसके लिए ख़तरा भी बन सकता है। वो न सिर्फ इकबाल उर्फ बाला के कत्ल के राज से वाकिफ़ था, बल्कि उसने बाला की लाश ठिकाने लगाने में उसकी पूरी पूरी मदद भी की थी। वो उसके जहांगीरा के मकान की उस कोठड़ी को भी अच्छी तरह जानता था, जिसमें गहरा गड्ढा खोद कर लाश दफन की गई थी। शादा ने बोलना चाहा, मगर सरासीमगी के आलम में कुछ भी ना कह सकी। इसी असना में नौकरानी लस्सी का ग्लास लेकर कमरे में दाखिल हुई, आगे बढ़ी, शादा के इशारे पर ग्लास लाली को पेश किया, मगर लाली ने गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। मैंने लस्सी शसी नहीं पीनी। उसकी आंखों से खफ की झलक रही थी। शादा ने इसरार किया, गर्मी में चल कर आया है, ठंडी ठंडी लस्सी पीने से आराम मिलेगा। उसका लहजा नरम और शीरीं था। लाली मज़ीद इनकार न कर सका, प्यासा भी था, गला खुश्क हो रहा था। उसने बेनियाजी से ग्लास हाथ में लिया और होंठों से लगाकर बड़ा घूंट भरा। नौकरानी ने शादा से पूछा, ज़मींदारनी, रोटी तैयार है, यहीं ले आऊं या तूने अपने कमरे में खानी है? मैं बाद में रोटी खाऊंगी। शादा ने नौकरानी को हिदायत की, पहले तू लाली के लिए रोटी ले आ, ये रोटी खा कर जाएगा। नौकरानी चली गई। लाली ने ग्लास खाली किया, एक तरफ रखा और एक हाथ से भीगी हुई मूंछें साफ करने लगा। शादा खामोश बैठी रही। लस्सी पीने से लाली को सुकून मिला। उसके गम और गुस्से में कमी पैदा हुई, लेकिन वो हनूज़ रूठा हुआ था। मुंह बिगाड़ कर बोला, मुझे अब जाना है, तेरी रोटी शोटी नहीं खानी। उसने उठने के लिए पहलू बदला, मगर शादा ने उसे उठने ना दिया। कहाँ चला? तुझे रोटी खाकर जाना होगा, रास्ते में तुझे कहाँ रोटी मिलेगी? उसने प्यार से डांटा। इतनी नाराज़गी ठीक नहीं, चुप करके बैठा रह। देख तो तूने अपना क्या हाल बना रखा है। उसने इज़हारे हमदर्दी किया। मेरा कुछ भी हाल है, तुझे इससे क्या लेना? लाली ने एक बार फिर गिला शिकवा शुरू कर दिया।
शादां चाहती भी यही थी। वो खामोश बैठी रही। उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। लाली कहता रहा, याद है तूने मुझसे कैसे कैसे वादे किए थे, वो सब क्या था? उसे भूल जा, शादां ने नरमी से कहा। मैंने कहा ना, जो होना था हो गया। लाली ने अफसुर्दा नज़रों से शादां को देखा, मगर कुछ कह न सका। सिर्फ गहरी सांस भर कर रह गया। नौकरानी खाना लेकर आई। उसने छोटी मेज़ उठाकर लाली के सामने रखी और खाना उस पर चुन दिया। खाना उम्दा और मुरगन था। पराठे थे, भुना हुआ गोश्त था, सब्जी थी, दाल थी और चावल भी थे। लाली ने निवाला तोड़ा और खाने लगा। लाली पिछली रात से भूखा था। खाना खुश जायका था। वो सर झुकाकर रग़बत से खाता रहा। शादां खामोश बैठी उसे खाना खाते हुए देखती रही। लाली ने खाना खाते खाते नज़रें उठाकर शादां को देखा। पूछा, तुझे पता है चौधरी कौन है? मुझे सब पता है वो कौन है, कैसा है। शादां ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया। तुझे कुछ पता नहीं। लाली का लहजा ऊंचा हो गया। धीरे बोल, शादां ने नरमी से समझाया। तू चौधरी को मुझसे ज़्यादा नहीं जानता। वो मेरा घर वाला है, मुझसे प्यार भी करता है, मुझे हर तरह आराम पहुंचाने की कोशिश करता है। उसने तो अपनी ज़मींदारी में से 150 किला ज़मीन भी मेरे नाम लिख दी है। उसने ठंडी सांस भरी। मैंने पहले अपने घर वाले को छोड़कर जो गलती की, उसकी सज़ा भी पाई। लाली, मैंने बहुत दुख उठाए हैं। तू जेल चला गया, तुझे क्या पता मैंने कैसी कैसी मुसीबतें झेली हैं। उसके लहजे में रिक्कत पैदा हो गई। अब मैं वो दुख, वो मुसीबतें नहीं उठा सकती। इतनी जवान भी नहीं रही। मैं चौधरी से धोखा नहीं कर सकती। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। निगाहें झुक गईं। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लाली का हाथ रुक गया। उसने चौंक कर शादां को देखा। वो रहीम दाद के बारे में उसे जो कुछ बताना चाहता था, बता ना सका। शादां आहिस्ता आहिस्ता बोलती रही। मैंने एक बार अपना घर उजाड़ा है। अब इसे दोबारा उजाड़ने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं। मैं अब तेरे काम की भी नहीं रही। तू किसी सोनी कुड़ी से ब्याह करके अपना घर बसा लेना। मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तेरे सोचने की बात नहीं। लाली ने जलकर अपने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। नाराज ना हो, शादां ने आजिज़ी से कहा। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, मुझे तंग करने की कोशिश ना करना। मैंने बरसों दुख उठाने के बाद आराम पाया है। खुशी के दिन देखे हैं। मेरी इसी खुशी को बर्बाद करने की ना सोचना। उसने आपदीदा होकर लाली को देखा। अब तू यहाँ ना आना। मेरा रास्ता और है, तेरा और। हमने अब एक दूसरे से कुछ नहीं लेना। समझ ले, तेरी शादां मर गई। उसका लहजा और जज्बाती हो गया। हाँ लाली, वो शादां अब मर गई। मैंने जिस रोज़ चौधरी के साथ निकाह किया था, वो उसी रोज़ मर गई थी। उसकी आंखें छलक उठीं। आंसू पलकों से ढलक ढलक कर रुखसारों पर बहने लगे। लाली भी जज्बाती हो गया। वो शादां को इस कदर दिल गिरफ्ता ना देख सका। तड़प कर बोला, शादां आंसू पूंछ ले। मैं अब तेरे पास कभी नहीं आऊँगा। तुझे भूल जाने की कोशिश करूँगा। जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज़ गुलगीर हो गई। उसने पानी से भरा हुआ ग्लास उठाया और गटागट पी गया। पानी पीने से तबीयत में ठहराव पैदा हुआ। वो फिर शादां की जानिब मुतवज्जे हुआ। शादां, मैंने हमेशा तुझे खुशी देने की कोशिश की, पर दे ना सका। तू चौधरी के साथ रहकर खुश है, तो तेरी खुशी के साथ मैं भी खुश हूँ। शादां ने आंसू पूंछे। उसके चेहरे पर छाया हुआ अफसुर्दगी का गुबार छटने लगा। उसने लाली की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश की। मुझे पता है तेरा दिल बहुत बड़ा है। वो लाली की दिलजोई करते हुए बोली। मुझे ये भी पता है
तूने जिंदगी भर दुख ही उठाए हैं, तू किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता। लाली खामोशी से खाना खाता रहा। शादा उठकर खड़ी हो गई। लाली ने टोका, कहाँ चली? मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, तेरे लिए कुछ रुपए लेकर आती हूँ। लगता है तेरे पास कुछ भी नहीं। तू मुझे रिश्वत देना चाहती है? लाली ने मुस्कुराकर चोट की। ऐसी गल ना कर। शादा ने गर्दन को खम देकर तीखी नज़रों से लाली को देखा। तूने हमेशा ही मेरी मदद की है। मेरी मझ मलिक की गोली से मर गई, तूने मुझे वैसी ही दूसरी मझ ला कर दी। बाद में तो 1000 रुपया भी दिया। तूने कब मेरी मदद नहीं की? उसकी तेवरी पर बल पड़ गया। अब मैं तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ तो इसे रिश्वत कह रहा है? तू मुझे इतना जलील समझता है? नाराज ना हो। लाली नरम पड़ गया, दांत निकाल कर हंसने लगा। मैंने तो तुझे छेड़ने के लिए कहा था, तू एकदम भड़क उठी। शादा ने कुछ ना कहा, तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। लाली सर झुकाकर खाना खाने लगा। दरवाजे पर कदमों की आहट उभरी। लाली ने मुड़कर देखा, वहाँ न शादा थी न उसकी नौकरानी। सामने रहीम दाद खड़ा था। दोनों की नज़रें मिलीं। रहीम दाद की तेवरी पर बल पड़ गए। टपट कर पूछा, कौन है तू? लाली ने कोई जवाब ना दिया। टटोलने वाली नज़रों से रहीम दाद के चेहरे को तकता रहा। बोलता क्यों नहीं? कौन है तू? इस दफ़ा रहीम दाद ने ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। मैं लाली हूँ जी। लाली ने दबी ज़बान से कहा। तू जेल में होता था ना, बाहर कैसे आ गया? सज़ा ख़त्म हो गई तो बाहर आ गया। लाली ने तलखी से कहा, मेरे बाहर आने से तुझे तकलीफ़ हुई? बकवास ना कर। रहीम दाद भड़क उठा। यहाँ कैसे आया? तुझे किसने यहाँ आने दिया? लाली कुछ ना बोला। टिकटिकी बांधे रहीम दाद की जानिब देखता रहा। उसके चेहरे और हर अंदाज का बगौर जायज़ा लेता रहा। हर चंद के उसकी आंखों पर अब ऐनक थी, चेहरे पर दाढ़ी थी और रुखसार पर ज़ख्म का हलाल नुमा वाज़ेह निशान था। उसका हुलिया बड़ी हद तक बदल चुका था, मगर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव और लहजे में उस रहीम दाद की झलक थी जो मुद्दत तक लाली के साथ जेल में रह चुका था और उसी के हमराह जेल से फरार भी हुआ था। लाली का शुबा रफ्ता रफ्ता पुख्ता हो गया। रहीम दाद उसकी मुतजस्सिस नज़रों की ताब ना ला सका। ग़ज़बनाक होकर चीखा, तू मेरी हवेली में दाखिल कैसे हुआ? उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आवाज़ ऊंची हो गई, चोर, डकैत, कैसी शान से सोफे पर बैठा आराम से रोटी खा रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो तेज़ी से आगे बढ़ा, मेज़ पर ज़ोर से ठोकर मारी। मेज़ उलट गई। खाने की काबें और प्लेटें छन्नाके के साथ फर्श पर गिरीं और इधर उधर बिखर गईं। रहीम दाद का गुस्सा कम ना हुआ। तुझे उस कमीनी ने बुलाया होगा, किधर है वो? कहाँ चली गई? वो शादा को गालियाँ देता रहा। लाली पुरसकून रहा। उसने किसी रद्द अमल का इजहार ना किया। ग्लास उठाया और होंठों से लगाकर पानी पीने लगा। रहीम दाद जोर से धाड़ा, निकल जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। मगर लाली उसके गैज़ो गज़ब से मरूब ना हुआ। ढीठ बनकर बोला, इतनी गर्मी ना दिखा, पानी तो पी लेने दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने पानी पिया, ग्लास फर्श पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। रहीम दाद गुस्से से हाँप रहा था, मगर वो कुछ बोला नहीं। निठाल होकर एक सोफे पर बैठ गया। लाली दरवाजे की जानिब बढ़ा, ठटका। रहीम दाद को एक बार फिर टटोलने वाली नज़रों से देखा। रहीम दाद उससे नज़रें ना मिला सका। वो मुड़ा और चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछने लगा। लाली कमरे से बाहर निकला। दालान में पहुंचा तो शादा से मुठभेड़ हो गई। उसने लाली को टोका,
तू कहाँ चला? लाली ने तीखे लहजे में कहा। अंदर जाकर देख, तेरे प्यार करने वाले खसम तुझे और मुझे दोनों को नंगी नंगी गालां निकाल रहा है। शादां के चेहरे पर सरासीमगी तारी हो गई। लाली ने उसकी जानिब मज़ीद तवज्जो न दी, आगे बढ़ा और कदम उठाता हुआ हवेली से बाहर चला गया। हवेली के सामने खुले मैदान में हर तरफ तेज़ धूप फैली हुई थी। लू भी चल रही थी। लाली धूप की तमाज़त और लू के थपेड़ों से बेनियाज चलता रहा। लारियों के अड्डे पर पहुंचा। नीली ट्रांसपोर्ट की एक लारी में सवार हुआ। शहर पहुंचकर वो लाहौर जाने वाली बस में बैठ गया। लाहौर पहुंचने के बाद भी उसके जहन पर रहीम ताज सवार था। उसने लाली को जिस हकारत से धुतकार कर अपनी हवेली से निकाला था, इस बेइज्जती और ज़िल्लत को वो भूला ना था। उसे रह रह कर रहीम ताज की गालियाँ और डांट फुटकार याद आ रही थी। जितना वो उनको याद करता, उसी शिद्दत के साथ रहीम ताज के खिलाफ उसकी नफ़रत और कदूरत बढ़ती जा रही थी। रहीम ताज के साथ साथ वो शादां से भी खफा था। रहीम ताज के बारे में उसका शुबा पुख्ता हो गया था, मगर वो इरशाद इलाही से उसकी तस्दीक कराना चाहता था। अपने इत्मीनान के लिए ये मालूम करना चाहता था कि वो उसका बाप चौधरी नूर इलाही नहीं, बल्कि रहीम ताज है, जो उसके क्लेम की बुनियाद पर मतरूका अराज़ी अलॉट करा के कोटला हरकशन का बहुत बड़ा ज़मींदार बन गया है। वो इरशाद इलाही को तलाश करने मलिक निसार मोहम्मद के भट्टे पर पहुंचा। जेल जाने से कबल इरशाद इलाही उसी भट्टे पर पथेरा था। लाली ने भट्टे के पथेरों से चोरी छुपे राब्ता कायम किया। इरशाद इलाही के बारे में दरियाफ्त किया, मगर वो अब उस भट्टे पर नहीं था। जमादार ने कुछ दूसरे पथेरों के साथ उसे किसी और भट्टे के मालिक के हाथ फरोख्त कर दिया था, मगर पूछ-गूछ के बावजूद ये पता ना चल सका कि इरशाद इलाही किस भट्टे पर पहुंचाया गया था। लाली ने फ़ैरोज़पुर रोड, जीटी रोड और बेदियाँ रोड के तमाम ही भट्टों पर इरशाद इलाही को तलाश किया, मगर उसका कोई सुराग ना मिला। उसने हिम्मत ना हारी, इसी कोशिश में लगा रहा कि कहीं उसका सुराग मिल जाए। वो इरशाद इलाही की तलाश में सरगर्दां था कि एक शाम उसका पुराना साथी गनी चट्टा मिल गया। वो ताला तोड़ने और नक़ब-ज़नी में माहिर था। कई बार पकड़ा गया, जेल गया, मगर बाज ना आया। अब वो मंझा हुआ जराइम पेशा बन चुका था। गनी चट्टा इसरार करके लाली को अपने घर ले गया। ना उसकी बीवी थी ना बच्चे, 2 बड़े भाई थे। वो अपने बाल बच्चों के साथ लाहौर में रहते थे, लेकिन चट्टा उनसे मिलता ना था। वो भी उससे कतराते थे। चट्टा मिस्री शाह के छोटे से तंगो तारीख मकान में रहता था। लाली के पास रहने का कोई ठिकाना ना था। गनी ने ज़ोर दिया तो वो उसके साथ ही रहने लगा। गनी ने लाली को अपने ढरे पर लगाना चाहा। उसे एक मुआविन व मददगार की ज़रूरत थी। लाली ने बहुत चाहा कि जिस दलदल से एक बार निकल चुका है, दोबारा उसमें ना गिरे, मगर ना उसे कहीं काम धंधा मिला और ना ही सर छुपाने के लिए जगह मिली। मुसलसल बेरोज़गारी और परेशान हाली से तंग आकर उसने गनी का कहा मान लिया। वैसे भी ना अब शादां उसकी रही थी और ना उस वादे की कोई अहमियत रही थी जो उसने चोरी डाका जनी ना करने के सिलसिले में उसे किया था। लाली और गनी चट्टा मिलजुल कर चोरी डकैती करते और चोरी का माल आपस में बांट लेते। रहते भी एक ही घर में थे। लाली एक बार फिर नडर और बेपाक जराइम पेशा बन गया था। ऐसे धड़ल्ले से वारदात करता था कि कभी कभी तो चट्टा दंग रह जाता। 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर गया। गर्मी का ज़ोर टूटने लगा। जुलाई का महीना था। बारिश का पहला छींटा पड़ चुका था।
एक रात गनी चट्टा और लाली चोरी की नीयत से कृष्ण नगर के एक मकान में दाखिल हुए, मगर कामयाब ना हो सके। वारदात से पहले ही जाग हो गई। घबरा कर दोनों ने राह फरार इख्तियार की। लाली तो बचकर साफ निकल गया। चट्टा बदहवास होकर छत पर पहुंच गया। शोर ज्यादा बुलंद हुआ तो उसने बराबर के मकान पर पहुंचने की कोशिश की। दोनों मकानों के दरमियान तंग गली हाइल थी। गनी ने जगन भरी, लेकिन छत के मुंडेर पर उसका पैर इस तरह फिसला कि वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका। लड़खड़ा कर धड़ाम से गली के पुख्ता फर्श पर गिरा। टखना उतर गया। उसने चोट की मतलब परवाह न की, सरपट भागा और फरार होने में कामयाब हो गया। घर पहुंचा तो लाली उसका इंतज़ार कर रहा था। चोट ताज़ा थी, लिहाजा रात को उसकी शिद्दत का पूरी तरह अंदाज़ा ना हो सका। चट्टा सुबह सोकर उठा तो पैर में शदीद दर्द के साथ साथ वर्म भी था। गनी चट्टा अब घर ही पर रहता। टूटी हड्डियां जोड़ने और हड्डियों के उखड़े हुए जोड़ बिठाने वाले एक मुआलिज के इलाज मुआलजे से टखने की हड्डी का जोड़ तो बैठ गया, लेकिन अभी तक वो चलने फिरने के काबिल ना हुआ था। इस अरसे में चोरी की सारी रकम ख़त्म हो गई। फाका कशी की नौबत आ गई। लिहाजा एक रात लाली अकेला ही चोरी करने के इरादे से निकला। आसमान पर बादल छाए थे। हवा मध्यम चल रही थी। रात तारीक और सुनसान थी। लाली ने एक मकान ताड़ा, घूम फिर कर जायजा लिया। मौका महल देखा। ये पुरानी वज़ा का बंगला था। उसके पिछले हिस्से की दीवारें ज़्यादा ऊंची न थीं। आसपास आबादी भी कम थी। जगह जगह घने दरख्त थे। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ हू का आलम था। लाली उछलकर आसानी से एक दीवार पर चढ़ गया। बंगले के वसी सहन में एक पलंग पड़ा था। कोई उस पर बेखबर सो रहा था। लाली ने चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देखा और आहिस्ता से नीचे उतर गया। सहन के साथ खपरेल की छत का तवील पर आमदा था। लाली दबे दबे कदमों आगे बढ़ा, पर आमदे में पहुंचा। एक कमरे के दरवाजे पर रुका। हौले से धक्का दिया, मगर दरवाज़ा बंद था। दूसरा भी अंदर से बंद था। अलबत्ता नुक्कड़ के कमरे का दरवाज़ा हाथ लगाते ही चिरचिराता हुआ खुल गया। लाली दम साधे कमरे के बाहर खड़ा रहा। उसने मुड़कर पलंग पर लेटे हुए शख्स की जानिब देखा। वो बदस्तूर गहरी नींद सो रहा था। लाली ने निहायत एहतियात से दरवाजे का एक पट खोला। कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमीज़ की जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली, उसे रोशन किया। कमरा ज़्यादा बड़ा न था। एक गोशे में मेज़ थी, उस पर चंद किताबें रखी थीं। कलाई पर बांधने की घड़ी भी एक तरफ रखी थी। मेज़ के करीब ही खूंटी पर पतलून और बुशर्ट लटकी हुई थी। लाली ने टॉर्च बुझा दिया। हाथ बढ़ाकर पतलून और बुशर्ट की जेबें टटोलीं। पतलून की पिछली जेब में चंद करेंसी नोट मौजूद थे। उसने नोट निकालकर अपनी जेब में रख लिए। मेज़ पर रखी हुई घड़ी भी उठाकर जेब में डाल ली। मेज़ से ज़रा हटकर लकड़ी की ऊंची अलमारी थी। वो उसकी जानिब बढ़ा, मगर उसका एक पैर करीब रखे हुए पेडेस्टल लैंप से कुछ इस तरह टकराया कि लैंप डगमगाकर कुर्सी पर गिरा और कुर्सी उसके बोझ से उलट गई। रात के सन्नाटे में अचानक शोर हुआ। लाली सरासीमा होकर जहाँ था वहीं दम बखुद खड़ा रहा। बाहर सहन में कोई आहिस्ता से खंकारा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर कदमों की आहट सुनाई दी और रफ्ता रफ्ता करीब आती गई। दरवाजे की दहलीज पर अंधेरे में एक साया लहराया। लाली को खतरे का शिद्दत से एहसास हुआ। वो संभला भी ना था कि दीवार पर लगा हुआ बल्ब रोशन हो गया। कमरे में हर तरफ रोशनी फैल गई। लाली ने झट चाकू निकाला, उसे खोला और मजबूती से हाथ में दबाकर दरवाजे की जानिब देखा। सामने सलीम लोथी खड़ा था। उसके सर के बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। आंखों में नींद का खुमार था। चेहरे पर खौफ व हिरास था। उसका जिस्म छरीरा था।
उम्र 45 पर से ज़्यादा न थी, मगर बालों में वक्त से पहले सफ़ेदी झलकने लगी थी। वो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही सन रसीदा नज़र आता था। लाली ने सलीम लोधी को पहली ही नज़र में पहचान लिया। उसे सामने देखकर बहुत सटपिटाया। लाली जब जेल में कैदी था तो उन्हीं दिनों सलीम लोधी भी नज़रबंद था। उसे मार्शल लॉ के एक ज़ाब्ते के तहत दूसरे सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ तखरीबकारी और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। वो बी क्लास कैदी था और लाली को इसका मुशक्कती लगाया गया था। लाली के साथ उसका रवैया निहायत दोस्ताना और मुशफ़िक़ाना था। उसके लहजे में हमेशा नरमी और शगुफ्तगी होती। लाली भी उसे इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखता था, कभी उसे शिकायत का मौका न दिया। सलीम लोधी ने भी लाली को पहचान लिया था। कुछ देर हैरानो परेशान खड़ा लाली को तकता रहा, फिर अटकते हुए पूछा, तू लाली तो नहीं है? उसके लहजे में इस्तजाब था। याद पड़ता है तू मेरे साथ जेल में था। लाली ने कोई जवाब ना दिया, बुत बना खामोश खड़ा रहा। यार, तू बोलता क्यों नहीं? इस दफ़ा उसके अंदाज में किसी कदर बेतकल्लुफ़ी थी। तू लाली है ना? हाँ जी, मैं लाली ही हूँ। लाली ने नज़रें झुकाकर दबी ज़बान से कहा। तू यहाँ पहुँचा कैसे? उसने पलटकर सहन की चारदीवारी की जानिब देखा। दीवार फांद कर आया होगा। वो खिल कर मुस्कुराया। चोरी करने आया था, मगर तूने गलत मकान का इंतखाब किया। मेरे पास मुश्किल से 30-35 रुपए होंगे, उनसे तेरा क्या काम बनेगा? लाली बहुत खज्जल हुआ, लेकिन ना उसने माजरत की, ना सफाई पेश करने की कोशिश की। सर झुकाए मुलजिमों की तरह चुप खड़ा रहा। सलीम लोधी मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलता रहा, यार, चोरी ही करनी थी तो किसी मालदार का घर ताका होता, ज़रो माल भी तगड़ा हाथ आता। वो लम्हे भर के लिए ठटका। वैसे इस घर को देखकर भी मगालता होता है। ये मेरी छोटी बहन का घर है। उसका शौहर PWD का ठेकेदार है, पैसे वाला भी है, मगर आजकल वो बाल बच्चों के साथ मरी में है। बरसात शुरू हो चुकी है, अब उसे वापस आ जाना चाहिए। सलीम लोधी ने झुककर फर्श पर औंधी पड़ी हुई कुर्सी उठाकर सीधी की। लाली की जानिब मुतवज्जे हुआ। उसके हाथ में खुला हुआ चाकू अभी तक दबा था। सलीम लोधी ने सहमी हुई नज़रों से चाकू देखा। यार लाली, इसे बंद करके जेब में रख, देख कर खामखा डर लगता है। उसने चाकू की जानिब इशारा किया। लाली ने उसकी तरफ देखे बगैर चाकू बंद किया और जेब में रख लिया। साथ ही जेब से घड़ी और चंद नोट निकालकर खामोशी से मेज़ पर रख दिए। सलीम लोधी ने नोट और घड़ी देखकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। यार, ये तो मेरे पास आखिरी असासा था। ले जाता तो सिगरेट खरीदने को भी कुछ न रहता। उसने मुस्कुराकर शौखी से लाली को देखा। हाँ, घड़ी के बगैर तो किसी न किसी तरह काम चल सकता है। तुझे इसकी मुझसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो ले जा। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं लेना। लाली ने इनकार में गर्दन हिलाई। उसकी आवाज़ में हल्की हल्की थरथराहट थी, लहजे में मुआज़रत और पशेमानी थी। मुझे तो जी बिल्कुल पता ना था कि आप यहाँ रहते हैं। सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पता ना था। तू सच ही कह रहा होगा। सलीम लोधी ने पेडेस्टल लैंप उठाकर दुरुस्त करते हुए तबसरा किया। वैसे रिश्वतखोर और चोर किसी के यार नहीं होते। लाली ने कुछ ना कहा, खामोश खड़ा रहा। सलीम लोधी ने स्विच दबाया। छत से लटकता हुआ बिजली का पंखा तेजी से गर्दिश करने लगा। सलीम लोधी ने कुर्सी पर बैठते हुए करीब रखी हुई दूसरी कुर्सी की जानिब हाथ से इशारा किया। तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। अब तो नींद आंखों से उड़ ही गई, तुझसे कुछ बातें ही हो जाएं। लाली खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया।
जब तू जेल में था तो खुद को बेगुनाह साबित करता था, कहता था कि तेरे खिलाफ चोरी डकैती का झूठा केस बनाया गया, किसी जुर्म के बगैर तुझे जेल में बंद कर दिया गया, यही कहा करता था ना? हाँ जी, यही कहता था। लाली ने तरदीद ना की। और जी, मैं गलत भी नहीं कहता था। ये भी तो कहता था कि तूने चोरी डकैती छोड़ दी है। सलीम लोधी ने मुस्कुराकर तंज किया। यहाँ तू दीवार फांद कर आधी रात को चोरी करने के लिए नहीं, मुझसे मिलने आया होगा। असली बात यह है जी, लाली ने सफाई पेश की। कई साल पहले मैंने शादा से चोरी डकैती ना करने का पक्का वादा किया था। मेहनत मजदूरी करके पेट पालने की कोशिश की, भट्टों पर पथेरा लग गया। लाली के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। पर जब मैं जेल में था तो उसने मुझसे धोखा किया, एक जमींदार से ब्याह कर लिया। उसने ठीक ही किया, तेरे इंतज़ार में बैठी रहती तो भूख और मुफलसी से मर जाती। सलीम लोधी ने मुस्कुराकर बेनियाजी से कहा, अब आराम से रहती होगी, ऐश करती होगी। हाँ जी, बहुत ऐश करती है, वड्डी जमींदारनी बन गई है। लाली का लहजा तीखा हो गया। उसका घर वाला वैसे है तो बहुत बड़ा जमींदार, पर उसने जाली क्लेम के जरिए मतरूका अराजी अलॉट करा रखी है। बेईमानी और धोखे फरेब से इतना बड़ा जमींदार बन गया है। सिर्फ वही नहीं, सारे ही बड़े जमींदारों ने बेईमानी और धोखे फरेब के जरिए इतनी वसी जमींदारियां हासिल की हैं। कुछ ने खुद इस तरह हासिल की हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बुजुर्गों ने इसी तरह की थीं और मरने के बाद अपने वारिसों के लिए छोड़ गए। सलीम लोधी इत्मीनान से बोलता रहा। किसी ने ज़बरदस्ती ज़मीन दबा ली, किसी ने अंग्रेज़ों के हाथ मजबूत करने के लिए मुल्क और उसके महकूम अवाम से गद्दारी की और इनाम के तौर पर दौलत और जागीर पाई। उसका लहजा तल्ख हो गया। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तब भी वो ऐश करते थे, अब भी ऐश करते हैं। पहले वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हुकूमत चलाते थे, अब उनके देसी मातहतों और कारिंदों के साथ मिलकर चलाते हैं। ऐसा ना होता तो लूट मार और गद्दारी के सिले में मिलने वाली ज़मींदारियां कब की ख़त्म हो जातीं। बहक सरकार जब्त करके बेज़मीन किसानों में तकसीम कर दी जातीं। मुझे इस बारे में जी कुछ पता नहीं। तुझे तो ये भी पता ना होगा कि तू चोर है तो वो ज़मींदार भी चोर है जिसने तेरी शादा से शादी कर ली। सलीम लोधी ने लाली को बताया। बल्कि तू छोटा चोर है और वो बड़ा चोर है। वो कैसे चोर हो सकता है जी? उसने चोरी डकैती तो नहीं की। लाली उसकी बात का मफहूम मतलब ना समझ सका। निहायत सादगी से बोला, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अभी नहीं आ सकती, तू अकेला नहीं, करोड़ों ऐसे बंदे हैं जो ये बात नहीं समझ सकते। सलीम लोधी ने मेज़ पर रखी हुई अपनी घड़ी उठाई, लाली के सामने करते हुए बोला, ये घड़ी देख रहा है जिसे तू चोरी करके ले जाना चाहता था? इसे मैंने 200 रुपए में ख़रीदा था। तू इसे चुरा कर ले जाता तो यूं समझ ले मेरे 200 रुपए की चोरी कर लेता। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक गल हुई। लाली ने उसकी तायीद की। ये 200 रुपए कैसे बने? सलीम लोधी सर उठाकर लम्हा पर सोचता रहा, फिर गोया हुआ। ये मेरी लगभग 15 रोज़ की तनख्वाह थी। मतलब कहने का ये है कि मेरी 15 रोज़ की मेहनत 200 रुपए में बदल गई। ये घड़ी उठाकर तू ले जाता तो दरअसल वो मेरी 15 दिन की मेहनत की चोरी होती। उसने गौर से लाली का चेहरा देखा। तू मेरी बात का मतलब समझ रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ, लाली ने मुस्तैदी से जवाब दिया। अब तू ज़रा अपनी शादा के शौहर के बारे में सोच, सलीम लोधी ने कहा। उसके मज़ारे चलचलाती धूप, कड़ाके की सर्दी और सख्त बारिशों में फसलें उगाते हैं, हल चलाते हैं,
बुवाई करते हैं, फसलों को पानी लगाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और ज़मींदार कुछ नहीं करता, पर बटाई पर आधी बल्कि इससे कहीं ज़्यादा फसल अपने हिस्से के तौर पर ले जाता है। उसने लाली को सवालिया नज़रों से देखा। ले जाता है ना? हाँ जी, बिल्कुल ले जाता है। जिस तरह मेरी 15 रोज़ की मेहनत घड़ी में बदल गई, बिल्कुल इसी तरह मज़ारों की मेहनत फसल में बदल जाती है। वो इस अंदाज से बात कर रहा था जैसे स्कूल का कोई उस्ताद अपने शागिर्द को कोई नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहा हो। उसका इस्तदलाल आम फहम था। बात करने का अंदाज दिलनशीन और असर अंगेज था। वो बताता रहा, ज़मींदार जब फसल का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा बटाई के ज़रिए उठा कर ले जाता है, तो वो दरअसल अपने हिस्से की शक्ल में मज़ारों की कई महीनों की मेहनत चुरा कर ले जाता है। ये बात समझ नहीं आई जी। लाली बात की तह तक ना पहुंच सका। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। ज़मीन जो उसकी होती है, ज़मींदार इसी की बिना पर अपने हिस्से की फसल ले जाता है। ये चोरी तो नहीं हुई? मैंने तुझे बताया नहीं कि बट्टे ज़मींदारों को या उनके बुज़ुर्गों को ये ज़मीन अंग्रेज़ हाकिमों की खिदमत और वतन से गद्दारी करने के सिले में मिली थी। सच पूछ तो अंग्रेज़ भी चोर थे। वो जी कैसे चोर हुए? लाली ने मदाखलत की। वो इस तरह चोर हुए कि वो भी इस मुल्क के अवाम की मेहनत तरह तरह से लूटते थे। ज़मींदार और जागीरदार इस लूट मार में उनकी मदद करते थे। वो लूट के माल में उनके साझेदार होते थे। लूट के हिस्से का ये माल ज़मीन होती थी। लगभग सारे ही बट्टे ज़मींदार ऐसे ही ज़मीन हासिल करके बने हैं। पर अब तो जी ज़मीन उन्हीं की हुई ना। लाली कायल ना हुआ। तू मेरी ये घड़ी चुरा कर ले जाता तो ये चोरी ही का माल हुई ना। सलीम लोधी ने मुस्कुराकर लाली को देखा। ज़मींदार का मामला तो और भी मुख्तलिफ है। जिस तरह हुआ, रोशनी और पानी सभी की मलकियत हैं और हर एक अपनी अपनी ज़रूरत के एतबार से उनसे फ़ायदा उठाता है। इसी तरह ज़मीन भी सबकी मलकियत है। हर एक को अपनी ज़रूरत के एतबार से इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़मीन तो उसकी होनी चाहिए जो फसल उगाने के लिए उस पर हल चलाए। वो खुलकर मुस्कुराया। इस तरह तू खुद ही सोच, तू अगर चोर है तो तेरी शादा का ज़मींदार शौहर तुझसे वड्डा चोर है। हर चोरी दरअसल मेहनत ही की चोरी होती है। सलीम लोधी ने लाली के चेहरे को देखा। तू मेरी बात का मतलब समझ गया ना? लेकिन उसकी बात का मफहूम लाली बिल्कुल ना समझ सका। उसे याद आया कि जेल में भी वो कभी कभी ऐसी ही बेतुकी बातें करता था, और जब बोलने पर आता तो बेतकान बोलता था। तभी तो जेल के अमले के अरकान उसे खप्ती और संकी कहते थे, और चक्कर मुंशी तो उसे हमेशा चिड़िया कहकर याद करता था। गर्ज़ ये कि सलीम लोधी का इनकलाबी फ़लसफ़ा लाली के पल्ले ना पड़ा। अलबत्ता रहीम दाद के बारे में उसने कुछ कहा था। इसे सुनकर वो भी खुश हुआ। सलीम लोधी की ये बात उसके दिल को लगी। उसने निहायत जोशो खरोश से सलीम लोधी की तायीद की। वो तो जी बहुत वड्डा चोर है। मेरा तो ये पक्का शुबा है उसने जाली क्लेम से ज़मीन अलॉट कराई है और वड्डा ज़मींदार बनकर अपनी शान और टोहर दिखाता है। लाली का लहजा तल्ख हो गया। उसने मुझे चोर और जराइम पेशा कहकर अपनी हवेली से निकाल दिया। मेरी बहुत बेइज्जती की, गंदी गंदी गालां निकालीं। आपको जी उसके बारे में पता नहीं। मुझे उसके बारे में पता करने की ज़रूरत भी नहीं। सलीम लोधी ने क़ता कलाम करते हुए बेनियाजी से कहा, सारे ही बट्टे ज़मींदार एक ही से होते हैं। दूसरों की मेहनत को निहायत बेदर्दी से चोरी करते हैं और ख़ुद को चोर नहीं बल्कि शरीफ और इज़्ज़तदार समझते हैं। तेरे ऐसे छोटे चोरों को नीच और कमीना समझते हैं। उनको धुतकारते हैं, जलील करते हैं, उनको गिरफ्तार करवा कर जेल में डलवा देते हैं। उसके होंठों पर जहर खंद उभरा। खैरियत हुई
کہ اس نے تجھے جیل نہیں بھجوایا۔ آئندہ تو اس کے پاس گیا تو وہ تجھے چوری کے الزام میں ضرور گرفتار کروا دے گا۔ پر میں نے ایک بار شاداں کے پاس ضرور جانا ہے، اسے رحیم داد کے بارے میں کئی باتیں بتانی ہیں۔ تو اسے جو کچھ بتائے گا وہ اس پر بالکل اعتبار نہیں کرے گی۔ سلیم لودھی نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ تو اب اسے بھول جا، وہ اب وڈی زمیندارنی بن چکی ہے، عیش کرتی ہے، آرام سے رہتی ہے، اور اسے یہ سارا عیش و آرام اس کے زمیندار شوہر ہی نے دیا ہے۔ وہ نہ اسے چھوڑ سکتی ہے اور نہ اس کے خلاف کچھ سن سکتی ہے۔ اس نے لالی کو نظر بھر کر دیکھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک بار عیش و آرام کا چسکا لگ جائے تو مشکل ہی سے چھوٹتا ہے۔ سلیم لودھی لمحہ پر خاموش رہ کر بے تکلفی سے بولا، یار تو جو چاہتا ہے اب نہیں ہو سکتا۔ لالی نے غور کیا، شاداں نے بھی اس سے یہی بات کہی تھی۔ اس کے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ سلیم لودھی نے نرم لہجے میں کہا، لالی اب تو شاداں کی نہیں اپنی فکر کر۔ اس نے لالی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تو چوری ڈکیتی نہیں چھوڑ سکتا؟ چھوڑ تو دی تھی جی، لالی نے کہا، میں نے اس بارے میں پہلے بھی بتایا تھا۔ تو وہی اپنی محبوبہ شاداں کی بات کرے گا؟ سلیم لودھی کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ اگر اس نے تجھے دھوکہ دیا، بے وفائی کی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو خودکشی کر لے۔ یہ چوری ڈکیتی اختیار کرنا سچ پوچھ تو خودکشی کرنا ہوا۔ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ لالی سر جھکائے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر سلیم لودھی کو دیکھا، آہستہ سے بولا، آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لگا سکتے؟ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو آج کل خود بے روزگار ہوں۔ آپ تو جی کسی کالج میں پڑھاتے ہیں، لالی نے اسے یاد دلایا۔ جیل میں تو جی آپ نے مجھے یہی بتایا تھا۔ پہلے میں انگریزی کا پروفیسر ہوتا تھا، سلیم لودھی نے لالی کو مطلع کیا، مگر جب جیل سے رہا ہو کر کالج پہنچا تو معلوم ہوا کہ مجھے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا جی؟ لالی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں طلباء کو حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہوں، ان کو دہشت گردی پر اکساتا ہوں، تخریب کاری کرتا ہوں۔ سلیم لودھی نے بتایا، اسی الزام میں مجھے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ تخریب کاری کیا ہوتی ہے جی؟ وہی باتیں جو میں چھوٹے چور اور بڑے چور کے بارے میں تجھے بتا رہا تھا۔ سلیم لودھی نے ہنس کر کہا، حکومت کے نزدیک یہ تخریب کاری ہے، ملک دشمنی ہے۔ آپ نے تو جی سچی سچی گلاں کی تھیں، کچھ تو سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ یہی تو لطیفہ ہے، سچ بات کہو تو تخریب کاری کہلاتی ہے، ملک دشمنی سمجھی جاتی ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے۔ سلیم لودھی کا لہجہ تیکھا تھا۔ ایوب خان اپنے جرنیلوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح بندوق دکھا کر حکومت پر قبضہ کر لے تو اسے ڈاکہ زنی نہیں، حب الوطنی کہا جاتا ہے، نظریہ ضرورت قرار دیا جاتا ہے۔ وہ روانی سے بولتا رہا، مارشل لا لگا کر طرح طرح کے ضابطوں سے اپنے ہی ملک کے پرامن عوام کو ڈرایا دھمکایا جائے، جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جائے تو اسے غنڈہ گردی اور دہشت گردی نہیں، ملک اور قوم کی خدمت ثابت کرنے کے لیے ریڈیو اور اخبارات سے دن رات پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کیسی کیسی قصیدہ خوانی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ اور تلخ ہو گیا۔ ادھر اپنا حال یہ ہے کہ سچ بات کہنا بھی چاہیں تو کہہ نہیں سکتے۔ وہ آہستہ آہستہ گنگنانے لگا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ لالی نے اس کی باتوں میں کسی دلچسپی کا اظہار نہ کیا، اکتا کر بولا،
ٹائم کیا ہو گیا ہے جی؟ سلیم لودھی نے گھڑی اٹھا کر دیکھی، لالی کو بتایا 4 بجنے والے ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا، جماہی لی، لگتا ہے تجھے نیند معلوم ہو رہی ہے، اب تو جا، جی چاہے تو کبھی آ جانا، مگر چوری کے ارادے سے نہیں۔ ایسی گل نہ کریں جی، لالی نے احتجاج کیا، آپ تو اب ادھر ہی ہوتے ہیں نا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا کب تک یہاں رہوں، سلیم لودھی نے کہا، پتہ نہیں مری سے واپسی کے بعد بہنوئی مجھے اب ٹھہرنے بھی دے گا کہ نہیں۔ وہ میری وجہ سے حکومت کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، سرکاری ٹھیکیدار جو ٹھہرا۔ سلیم لودھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لالی بھی کھڑا ہو گیا، دونوں کمرے سے باہر نکلے، برآمدے سے گزر کر صحن میں پہنچے۔ سلیم لودھی نے آگے بڑھ کر بیرونی دروازہ کھولا، لالی خاموشی سے باہر چلا گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لالی اپنے ٹھکانے پر واپس پہنچا تو مسجدوں سے اذان کی آوازیں ابھر رہی تھیں، مشرقی افق پر ہلکی ہلکی کافوری روشنی پھیل رہی تھی، صبح کی آمد تھی۔ غنی چٹا بیدار ہو گیا تھا، اس نے تشویش کا اظہار کیا، تو نے اتنی دیر کہاں لگا دی، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ کوئی گڑبڑ شڑبڑ نہیں ہوئی، لالی نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، پر کام نہیں بنا۔ کام نہیں بنا؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا، تو اب تک رہا کہاں؟ یار اب سونے دے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، لالی نے بیزاری سے کہا، بعد میں تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ چٹا خاموش ہو گیا، وہ اس وقت لالی سے الجھنا نہ چاہتا تھا۔ لالی نے آنکھیں بند کیں اور گہری نیند سو گیا، وہ دوپہر تک بے خبر سوتا رہا۔ سلیم لودھی کی باتوں کا لالی پر کچھ اثر ہوا تو یہ ہوا کہ رحیم داد کے خلاف اس کی نفرت تو چند ہو گئی۔ رات کو وہ چوری کے ارادے سے نکلا، اس دفعہ اس نے ایک جنرل اسٹور تاکا، تالا توڑ کر دکان کے اندر داخل ہوا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دکان کا جائزہ لیا، کاؤنٹر کی ایک طراز کی تلاشی لی تو نقدی نظر آئی، رقم زیادہ نہ تھی، 468 روپے تھے۔ لالی نے تمام روپے اٹھا کر جیب میں رکھے اور جس ہوشیاری سے دکان کے اندر پہنچا تھا اسی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے ہی روز اس نے ایک بار پھر ارشاد الہی کی تلاش شروع کر دی۔ وہ رحیم داد کے بارے میں جتنا غور کرتا اسی قدر اس کا یہ گمان پختہ ہوتا جاتا کہ وہ ارشاد الہی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ ارشاد الہی کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی تو وہ کس طرح 35 سے زیادہ نہ تھا۔ مستزاد یہ کہ ارشاد الہی سے بڑی ایک بہن بھی تھی جسے بلوائی اٹھا لے گئے تھے، اور اس سے بھی بڑا ایک بھائی تھا جو تریموں کے پتن پر دریائے راوی کے کنارے سکھ حملہ آوروں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ تمام باتیں ارشاد الہی نے اسے بتائی تھیں۔ اس نے باتوں باتوں میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا اور اس کے بڑے بھائی بہن کا باپ ایک ہی تھا اور اس کی ماں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ عمر کے اعتبار سے وہ اتھیڑ تھا، اس کے سر اور داڑھی کے بال کہیں کہیں سے سفید بھی ہو چکے تھے۔ اس کے برعکس رحیم داد جوان تھا اور اس کا ایک بھی بال سفید نہ تھا۔ علاوہ ازیں حلیہ بہت حد تک تبدیل ہو جانے کے باوجود لالی کو اس کے چہرے کے خد و خال، آواز اور بات کرنے کے انداز میں اس رحیم داد کی جھلک نظر آتی تھی جو مدت تک اس کے ساتھ رہ چکا تھا۔ رحیم داد نے نہ صرف شاداں کو اس سے چھین لیا تھا بلکہ اسے ذلیل و خوار کر کے اپنی حویلی سے نکالا بھی تھا۔ لالی اسے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کوشش میں ارشاد الہی اس کے لیے نہایت کارآمد اور مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے ذریعے وہ رحیم داد کو بے نقاب کر سکتا تھا، گرفتار کر سکتا تھا۔ سیف اللہ کے قتل اور جعلی کلیم کی بنیاد پر
मतरूका अराजी अलॉट कराने के जुर्म में जेल भिजवा सकता था, फांसी पर लटकवा सकता था। चंद रोज़ की भाग दौड़ के बाद इस बार वो इरशाद इलाही का सुराग लगाने में कामयाब भी हो गया। बरसात का मौसम था। उन दिनों भट्टों पर आम तौर से काम बंद रहता था, लिहाजा पथेरों और भट्टा मजदूरों से मिलना आसान था। जीटी रोड के एक भट्टे के वाकिफकार पथेरे के ज़रिए उसे ये इत्तिला मिली कि इरशाद इलाही मेलसी के एक भट्टे पर कई महीने से काम कर रहा है। लाली उस रोज़ इरशाद इलाही के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने की गर्ज से जीटी रोड भट्टे पर एक बार फिर गया। वापसी पर वो बहुत मुतमईन था और मेलसी जाकर इरशाद इलाही से मिलने का मंसूबा बना रहा था। दिन ढल रहा था। आसमान पर काले काले बादल छाए थे। शाम होने से पहले ही शाम का समा था। बारिश होने के आसार साफ नज़र आ रहे थे। हवा भीगी भीगी थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई राहगीर दिखाई न देता था। बारिश शुरू होने से पहले ही वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहता था। उसके कदमों की रफ्तार तेज थी। वो सर झुकाए अपने ख्यालात में डूबा हुआ सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। नागाह अक़ब में हॉर्न की आवाज़ उभरी। लाली ने पलट कर देखा। एक जीप सड़क पर दौड़ती हुई उसकी जानिब बढ़ रही थी। आन की आन में जीप उसके करीब पहुंची और आगे निकल गई, मगर कुछ फासले पर जाकर उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। जीप रुक गई। जीप में रहीम दाद बैठा था। उसने अब ड्राइविंग सीख ली थी और अक्सर खुद ही जीप चलाता था। उन दिनों उसका ड्राइवर बीमार था, लिहाजा उस वक्त खुद ही जीप चला रहा था। वो एक भट्टे के मालिक से मिलने के बाद वापस कोटला हरकशन जा रहा था। उसने लाली को पहचान लिया था और जीप रोककर उसके नज़दीक आने का इंतज़ार कर रहा था। लाली कदम बढ़ाता हुआ जीप के करीब पहुंच गया। उसने चलते चलते जीप के अंदर झांका। रहीम दाद अगली नशिस्त पर बैठा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था और दूसरे से गियर को आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर हिला रहा था। ऐसा महसूस होता था कि गियर फंस गया है और वो उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। लाली ने भी रहीम दाद को पहचान लिया था। वो लम्हा भर के लिए ठटका, गौर से रहीम दाद को देखा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और वो गियर दुरुस्त करने में मुनहमिक था। उसने नज़रें उठाकर ना लाली की तरफ देखा और ना ही कोई तवज्जो देने की कोशिश की। लाली ने नफ़रत से रहीम दाद को देखा। उसके चेहरे पर झुंझुलाहट छा गई, मगर वो रुका नहीं। पेचोताब खाता हुआ खामोशी से आगे बढ़ गया। वो मुसलसल रहीम दाद के बारे में सोच रहा था। जीप अपनी जगह पर खड़ी रही। लाली आगे और आगे बढ़ता गया। उसने फरलॉन्ग भर रास्ता भी ना तय किया होगा कि सड़क पर जीप के पहियों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसने मुड़कर पीछे ना देखा। तेज़ कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ता गया। जीप के पहियों की आवाज़ करीब आती गई, फिर इस कदर करीब आ गई कि लाली ने पलट कर देखा। जीप सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर धूल उड़ाती तूफान की मानिंद उसकी जानिब बढ़ रही थी। लाली को फौरन खतरे का एहसास हुआ। उसने तेज़ी से नशेब में उतरने की कोशिश की। वो सख्त बदहवास और सरासीमा था। लाली नशेब में जाने के लिए मुड़ा ही था कि जीप उसके सर पर पहुंच गई। इस जोर से टकराई कि लाली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरा। जीप गर्द के बादल उड़ाती हुई तेज़ी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद कच्चे रास्ते से फिर पुख्ता सड़क पर पहुंच गई और निहायत तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई बहुत दूर निकल गई। लाली गर्दो गुबार में लुथड़ा हुआ सड़क के किनारे बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो रुक रुक कर सांस ले रहा था। सड़क वीरान थी। अंधेरा बढ़ गया था। बादल एक बार जोर से गरजे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
अक्टूबर के नीम गरम नीम सर्द शब व रोज़ थे। बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका था, मगर खिलाफ मामूल कोटला हरकशन में उस रोज़ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान पर काली काली घटाएं छाई थीं, रात तारीक और साकित थी। हवा में नमी थी, सरसराहट थी। लाली कोटला हरकशन में दाखिल हुआ तो 10 बज रहे थे। बस्ती पर हू का आलम तारी था। हर तरफ कीचड़ थी, जगह जगह बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढे थे। लाली कीचड़ और पानी से भरे हुए गड्ढों से बचता बचाता संभल संभल कर कदम उठाता हवेली की जानिब बढ़ रहा था। सुनसान रात में मेंढकों के ज़ोर ज़ोर से टर्राने की आवाज़ें रुक रुक कर आ रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हवेली के पिछवाड़े पहुंच गया। सामने मेहमान खाना था और उससे मुत्तसिल नातिर खान का मकान था। मकान पर गहरी खामोशी छाई थी। एक खिड़की की झर्री से रोशनी इस तरह फूट रही थी कि अंधेरे में जर्द जर्द धब्बे की मानिंद नजर आती थी, लेकिन मेहमान खाने में अंधेरा था। वो मेहमान खाने के दरवाजे के करीब गया, चौकन्ना नज़रों से गिरदो पेश का जायज़ा लिया। मेहमान खाने में खामोशी थी। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो कुछ देर अंधेरे में दम साधे खड़ा रहा, फिर निगाहें उठाकर मेहमान खाने की दीवारी की बुलंदी का अंदाज़ा लगाया। दीवारें ज़्यादा ऊंची न थीं। उसने चाकू निकाला, खोला और हाथ में दबा लिया। उसने दोनों हाथ बुलंद किए, जिस्म समेट कर ज़ोर से उछला और दीवार के ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर उछलने के साथ ही कमर में टीस उठी। ये उस चोट की तकलीफ़ थी जो रहीम दाद की जीप से टकराने के बायस रीढ़ की हड्डी में आई थी। ये चोट ऐसी शदीद थी कि वो कई रोज़ तक बिस्तर पर पड़ा रहा। करवट भी बदलता तो दर्द से बिलबिला उठता। इस चोट के अलावा जीप की टक्कर से कमर और टांगों पर जख्म भी आए थे, मगर ज़्यादा गहरे न थे। कोई हड्डी पसली भी न टूटी थी। इलाज मुआवजे से वो सेहतयाब तो हो गया था, लेकिन झटका लगता तो चमक के साथ कमर में अभी तक दर्द होता था। लाली दीवार से चिमट कर लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता हाँफने लगा। जब ज़रा करार आया तो उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं। सहन बिल्कुल खाली था, अलबत्ता बरामदे में एक चारपाई नज़र आ रही थी। वो टिकटिकी बांधे उसी सिमत देखता रहा, मगर न कोई आहट उभरी न आवाज़। वो टांगें लटकाकर आहिस्ता से नीचे उतरा। उसने सबसे पहला काम ये किया कि निहायत एहतियात से बैरूनी दरवाज़े की कुंडी खोल दी, ताकि ख़तरे की सूरत में आसानी से बाहर निकल जाए। वो होशियार और मनचा हुआ चोर था, और हर ऐसा चोर वारदात से पहले फरार होने का बंदोबस्त कर लेता है। वो दबे दबे कदमों चलता हुआ बरामदे में पहुंचा। चारपाई को करीब से देखा, मगर चारपाई खाली थी। मेहमान खाने की जानिब से इत्मीनान करने के बाद वो फिर सहन में आया। गर्दन उठाकर उस दरवाजे पर पहुंचा जो हवेली में खुलता था। लाली ने आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजे का एक पट खुल गया। वो खामोशी से अंदर चला गया। हवेली में पहुंचकर उसने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। हवेली भाई भाई कर रही थी। सब बेखबर सो रहे थे, अलबत्ता सदर दरवाजे पर बैठा हुआ चौकीदार जाग रहा था। उसकी खंकार वक्फे वक्फे से रात की खामोशी में उभर रही थी। लाली हवेली के तवील दालान में दाखिल हुआ। बाएं हाथ को ऊपर जाने का जीना था। वो आगे ना गया, जीने में दाखिल हुआ और सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर पहुंच गया। छत खाली थी, मगर सामने के कमरे में रोशनी थी। लाली ने चाकू मजबूती से हाथ में दबा लिया, निहायत होशियारी से आगे बढ़ा और दरवाजे के नज़दीक पहुंच गया। कमरे में खामोशी थी। दरवाजे का एक पट खुला था। लाली ने गर्दन बढ़ाई, दरवाजे की ओट से अंदर देखा। कमरे के एक कोशे में लैंप रोशन था। मध्यम रोशनी में रहीम तातैन उसके सामने खड़ा था। वो सिर्फ बुनियान पहने हुए था और उसके नीचे धोती थी।
उस लिबास से ये अंदाज़ा होता था कि वो बिस्तर पर लेटने जा रहा है। लाली ने उसे देखा तो लम्हा भर के लिए सरासीमा हो गया, लेकिन वो जल्दी ही संभल गया। रहीम दाद इस तरह खड़ा था कि उसकी पुश्त लाली की तरफ थी। लाली निहायत खामोशी से कमरे में दाखिल हो गया। रहीम दाद को उसकी आमद की मतलब खबर ना हुई। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। लाली दहलीज के करीब चुपचाप खड़ा रहा, टिकटिकी बांधे निहायत चौकन्ना नज़रों से रहीम दाद को देखता रहा। कई लम्हे इसी आलम में गुजर गए। फिर लाली ने जुर्रत से काम लिया। टोह लगाने की गर्ज से रहीम दाद को बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब किया। रहीमे। उसका ये नफ्सियाती हरबा कारगर साबित हुआ। रहीम दाद चौंका, फौरन पलट कर देखा। लाली को रूबरू पाया तो बौखला गया। हकलाते हुए बोला, तू लाली है? वो आगे कुछ न कह सका। सहमी हुई नज़रों से लाली को घूरने लगा। हाँ, मैं लाली हूँ। लाली ने उसकी खौफज़दा आंखों में झांकते हुए कहा। तू ये समझ बैठा था कि मैं मर गया? उसका लहजा तीखा हो गया। तूने तो अपनी जीप चढ़ाकर मुझे मार डालने की पूरी कोशिश की थी, पर मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ रहीमे। तू मुझे रहीमे क्यों कह रहा है? रहीम दाद के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ झुंझुलाहट भी छा गई। मेरा नाम चौधरी नूर इलाही है। मैं किसी रहीमे शहीमे को नहीं जानता। तू रहीमे को नहीं जानता तो आवाज़ देने पर पलटा क्यों? लाली ने मुस्कुराकर रहीम दाद की जानिब देखा। तुझे धोखा हुआ। इस दफ़ा रहीम दाद का लहजा संभला हुआ था। मैंने तुझसे झगड़ा नहीं करना। रहीम दाद चाहता तो शोर मचाकर अपने नौकरों को मदद के लिए बुला सकता था। लाली को पकड़कर चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस के हवाले कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस की तहवील में जाने के बाद वो उसके लिए और ख़तरनाक बन जाता। लिहाजा उसने सिर्फ धमकी पर इक्तिफा किया। अब तू यहाँ से चुप करके चला जा, वरना मुझे अपने नौकरों को बुलाना पड़ेगा। इसे देखा है? लाली ने झट खुला हुआ चाकू सामने कर दिया। आवाज़ निकाली तो छाती में ऐसा उतार दूंगा कि सांस भी ना ले सकेगा। रहीम दाद कुछ ना बोला, खूनखार नज़रों से लाली को घूरता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अचानक वो तेज़ी से पलटा, मेज़ पर रखा हुआ कांसी का ग्लास उठाकर लाली के सर पर मारा। लाली भी गाफिल न था। उसने निहायत होशियारी से सर एक तरफ कर लिया। ग्लास उसके कान के पास से गुजरता हुआ खिड़की के पर्दे से उलझकर फर्श पर गिर गया। उसके गिरने से हल्की सी झंकार उभरी। लाली ने मुड़कर उसकी जानिब देखा। लाली की नज़र भटकी तो रहीम दाद ने फौरन मौके से फ़ायदा उठाया। वो तेज़ी से झपटा और लाली को दोनों हाथों से दबोच लिया। लाली ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने के लिए ज़ोर लगाया, मगर कामयाब ना हो सका। दोनों ज़ोर आजमाई करने लगे। लाली को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि रहीम दाद में उससे कहीं ज़्यादा कसबल है। वो पहले से और कवी हो गया है। रहीम दाद ने लाली को अपने बाजुओं के शिकंजे में जकड़ कर बेबस कर दिया था। लाली के हाथ में हुनूस चाकू दबा था। उसने आखिरी हरबे के तौर पर चाकू से वार करने की कोशिश की, मगर रहीम दाद ने उसे वार करने का मौका न दिया। झट उसका हाथ पकड़कर चाकू छीनने की कोशिश की। लाली ने मुदाफ़अत की। इस छीना झपटी में चाकू लाली के हाथ से छूटकर दूर चला गया। रहीम दाद चाकू उठाने के लिए झपटा। लाली ने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पकड़ ली, ज़ोर से झटका दिया। रहीम दाद लड़खड़ा कर गिरा। लाली उससे चिमट गया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। रहीम दाद ने इस बार भी ताकत के बल पर लाली को ज़ेर कर लिया। उसे मजबूती से पकड़ा, ज़ोर लगाया और ढकेलता हुआ दीवार तक ले गया। उसने लाली को दीवार से अड़ा दिया। गज़बनाक होकर थप्पड़ और घूंसे मारने लगा। लाली खामोशी से मार खाता रहा। उसने किसी तरह की मुज़ाहिमत ना की।
रहीम दाद ने इस बुरी तरह दबा रखा था कि वो मुज़ाहिमत कर भी ना सकता था। वैसे भी वो पुलिस वालों के हाथों इतनी मार खा चुका था कि अब पिटने का आदी हो गया था। पुलिस तशद्दुद के ज़रिए कभी उसे इक़बाल जुर्म कराने में कामयाब ना हो सकी थी। मार खा खा कर उसकी खाल सख्त और हड्डियाँ मजबूत हो गई थीं। रहीम दाद उस पर झुका हुआ था, बिफर बिफर कर मार रहा था। मारते मारते रहीम दाद के हाथ शल हो गए। चेहरा पसीने से शराबूर था। सांस धोंकनी की तरह चल रही थी। वो बुरी तरह हाँप रहा था। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ती जा रही थी। लाली बज़ाहिर नठाल और शिकस्ता नज़र आ रहा था, मगर मौके की तलाश में था। उसने रहीम दाद का ज़ोर और दबाव टूटता हुआ महसूस किया तो फ़ौरन खुद को संभाला। अपनी पीठ पूरी तरह दीवार से टिकाई, दोनों पैर समेटे, तेज़ी से ऊपर उठाए और रहीम दाद के पेट पर ज़ोर से मारे। वो इस अचानक और शदीद हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसके जिस्म का तवाज़ुन कुछ इस तरह बिगड़ा कि कदम उखड़ गए। वो पलट कर फर्श पर धड़ाम से गिरा। लाली ने एक बार फिर उसकी टांग पकड़कर खींचना चाही। टांग तो उसके हाथ न आई, धोती आ गई। रहीम दाद का निचला धड़ बिल्कुल बुरहना हो गया। उसने करवट ली, उठना चाहा, लेकिन लाली ने उसे संभलने का मौका ना दिया। धोती एक तरफ फेंकी, उकाब की तरह झपटा और उछलकर इस कदर जोर से कमर पर लात मारी कि रहीम दाद फर्श पर ढेर हो गया। लाली पलटा और आगे बढ़कर फौरन अपना चाकू उठाया, उकाब की तरह झपटा और उछलकर इस कदर जोर से कमर पर लात मारी कि रहीम दाद फर्श पर ढेर हो गया। लाली पलटा और आगे बढ़कर फौरन अपना चाकू उठा लिया। रहीम दाद के पास पहुंचा और गर्दन घुटने से दबाकर बैठ गया। रहीम दाद अब बेबस हो चुका था। वो खामोश पड़ा रहा और आहिस्ता आहिस्ता हाँफता रहा। लैंप की रोशनी में उसके बुरहना कोल्हे पर जख्म का बड़ा सा निशान साफ नजर आ रहा था। लाली उस निशान को देखकर चौंका और बगौर देखने लगा। रहीम दाद को कुछ खबर न थी। वो रुक रुक कर गहरी सांस भर रहा था। लाली ने जख्म के निशान पर चाकू की नोक आहिस्ता से चबोई। रहीम दाद को मुखातिब किया, रहीमे। रहीम दाद ने तकलीफ से मुंह बिगाड़ा। लाली मुस्कुरा कर बोला, तूने दाढ़ी रख ली, ऐनक लगानी शुरू कर दी, हर तरह अपना हुलिया बदल लिया, नाम भी बदल लिया, पर तू इस निशान को ना बदल सका। रहीम दाद दम बखुद पड़ा रहा। लाली बोलता रहा, तेरी शिनाख्त का ये निशान तो थाने और जेल दोनों जगह रजिस्ट्रों में लिखा है। उसने रहीम दाद की गर्दन पर रखे हुए घुटने को दबाया। अब चुप करके क्यों पड़ा है? कह दे मैं रहीम दाद नहीं, चौधरी नूर इलाही हूँ, और अहमद कोट का नहीं, ज़िला गुरदासपुर के मौज़ा नसीरपुर का मुहाजिर हूँ। उसने अपने घुटने को ज़रा सा और दबाया। मेरी गर्दन तो छोड़। रहीम दाद ने तकलीफ से बेकरार होकर फरियाद की। पहले मेरी बात का जवाब दे। लाली ने इस दफ़ा घुटने पर जोर देकर रहीम दाद की गर्दन को ज़्यादा कुव्वत से दबाया। रहीम दाद चीं बोल गया, बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। उसने बिलबिलाकर आजिज़ी से कहा, मेरा दम घुटा जा रहा है। वो मुंह खोलकर ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगा। उसकी आंखें तकलीफ से फटी हुई थीं। लाली अलहदा हो गया, उठा और रहीम दाद के सामने कुर्सी पर बैठ गया। चाकू बदस्तूर उसके हाथ में था। रहीम दाद कुछ देर बेसुध पड़ा रहा। फिर उसने पहलू बदला, उठकर खड़ा हुआ, लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा, धोती उठाई और उसे बांधने लगा। उसने लाली से नजरें ना मिलाईं। वो नठाल और शिकस्त खूरदा नजर आ रहा था। लाली ने चाकू लहराते हुए हुक्म देने के अंदाज में कहा, सामने बैठ जा। रहीम दाद गर्दन झुकाए हुए बढ़ा और बिस्तर पर पैर लटकाकर खामोशी से बैठ गया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, चेहरे पर वीरानी छाई थी। रहीमे,
लाली ने डपट कर पूछा, ये बता, नहरबारी तो आपके नज़दीक डिब्बों पर जेल की वर्दी में जो लाश मिली थी वो किसकी थी? तू उसे नहीं जानता, रहीम दाद ने मरी हुई आवाज़ में कहा। वो हकीम चिश्ती था। तुझे पता नहीं मैं उसे जानता हूँ। उसने एक बार मेरा इलाज भी किया था। शादू मुझे उसके पास ले गया था। वो दवाई ना देता तो मैं कब का मर चुका होता। बहुत नेक बंदा था वो। लाली का लहजा अफसुर्दा हो गया। उसका खून करके तूने ठीक नहीं किया। इन बातों को छोड़। रहीम दाद ने इस दफ़ा नज़रें उठाकर लाली की जानिब देखा। साफ साफ बता, तू चाहता क्या है? पहले ये बता, तूने जीप दौड़ाकर मुझे जान से मार देने की कोशिश क्यों की थी? साफ बात यह है कि मुझे शुबा हो गया था कि तूने मुझे पहचान लिया। उसने उज़र पेश किया। मुझे तेरी तरफ से ज़बरदस्त ख़तरा पैदा हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए मैं तुझे ख़त्म कर देना चाहता था। मैंने हकीम का भी इसीलिए खून किया था कि उसने जेल की वर्दी में मुझे देख लिया था। तेरी घरवाली नूरा और बाल बच्चे कहाँ हैं? वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, रहीम दाद ने बुझे हुए लहजे में बताया। नूरा को भी मुझ पर शुबा हो गया था। तूने जान बचाने के लिए अपनी बीवी बच्चों का भी खून कर दिया। लाली ने नफरत से मुंह बिगाड़ा। मुझे ये पता ना था तू इतना जालिम और बेरहम है। मैंने उनका खून नहीं किया। रहीम दाद ने सफाई पेश की। उसने तेल छिड़क कर खुद ही आग लगाई और बच्चों के साथ जलकर मर गई। लाली कुछ ना बोला। रहीम दाद भी खामोश रहा। कमरे में हवा के ठंडे ठंडे नामालूद झोंके आ रहे थे। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। पुख्ता छत पर बारिश के कतरों से हल्का हल्का जल तरंग बज रहा था। रात सुनसान और भीगी हुई थी। तुझे अच्छी तरह पता है मैं शादा से कितना प्यार करता हूँ। मैंने उसके सिवा दुनिया में किसी भी औरत से इतना प्यार नहीं किया। लाली ने खामोशी को तोड़ा और अफसुर्दा लहजे में रुक रुक कर बोलने लगा। ये जानते हुए भी तूने उसे ब्याह कर लिया। उसे मुझसे छीन लिया। मुझे मार डालने की कोशिश की। उसकी बातों से अचानक तलखी झलकने लगी। अब मुझसे पूछता है मैं क्या चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तू मुझसे बदला लेना चाहता है। रहीम दाद ने अपने रद्द अमल का इज़हार किया। हाँ, मैं तुझसे बदला लेना चाहता हूँ, लाली ने बड़े जोश से कहा और खुला हुआ चाकू निकाल कर सामने कर दिया। रहीम दाद ना खौफज़दा हुआ ना परेशान। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। तूने मुझे कत्ल कर दिया तो ये भी जान ले, तू भी मेरी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक के बाद दूसरा कत्ल करता जाएगा और फांसी का फंदा हर घड़ी तेरे सर पर ख़तरा बनकर लटकता रहेगा। वो निहायत इत्मीनान से बोल रहा था। तू मौत से जितना दूर भागेगा वो उतना ही तेरे नज़दीक आती जाएगी। हर दम उसके डर से सहमा हुआ रहेगा। लाली ने चौंक कर रहीम दाद को देखा और उसकी दानिशमंदी और सूझबूझ से दंग रह गया। नए माहौल और नए हालात ने उसे इस कदर तब्दील कर दिया है, लाली ने सोचा भी ना था। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। आंखों में झिलमिलाते हुए नफरत और कदूरत के चिराग बुझ गए। वो खामोश बैठा रहा। लाली को खामोश पाकर रहीम दाद ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैंने अपने तजर्बे से जो कुछ सीखा तुझे बता दिया, आगे तेरी मर्जी। रहीम दाद ने उसे मज़ीद मुतासिर करने की कोशिश की। मैंने गलत अंदाज़ा तो नहीं लगाया? तू मुझे कत्ल करने ही के इरादे से आया था ना? नहीं, मैंने तुझे कत्ल नहीं करना। मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया। लाली ने पिसपाई इख्तियार न की।
پر میں نے تجھ سے بدلہ لینا ہے اور ضرور لینا ہے۔ رحیم داد جو اب تک نہایت مطمئن نظر آ رہا تھا، لالی کی بات سن کر بہت سٹپٹایا، حیرت زدہ ہو کر بولا، تو کیا کرے گا؟ تو نے جس چودھری نور الہی کے کلیم کے ذریعے اتنی بڑی متروکہ اراضی الاٹ کرا رکھی ہے، اس کا پتر ارشاد الہی زندہ ہے۔ لالی نے چپتی ہوئی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا، اور میں اسے جانتا ہوں۔ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ رحیم داد کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کے سائے پھیل گئے۔ جن دنوں میں ملک نثار کے بھٹے پر پتھیرا لگا ہوا تھا، وہ بھی میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی جھگی میں اکٹھے رہتے تھے۔ وہ اپنے پیو کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا چکا ہے۔ لالی بے باکی سے مسکرانے لگا۔ تو صاف صاف سننا چاہتا ہے تو وہ بھی سن لے۔ میں ارشاد الہی کی جانب سے تیرے خلاف تھانے میں پرچہ چاک کراؤں گا۔ قتل اور جعل سازی کے الزام میں تجھے گرفتار کروا کر مقدمہ چلواؤں گا۔ آگے جو کچھ ہونا ہے اس کے بارے میں تو خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ لالی اس کا فوری رد عمل معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر رحیم داد بالکل خاموش رہا۔ چند لمحے بعد اس نے لالی سے ایک بالکل مختلف سوال کیا۔ یہ بتا، تجھے شاداں سے بہت محبت ہے؟ ہاں۔ لالی نے تعجب سے رحیم داد کو دیکھا۔ پر تو مجھ سے یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے گرفتار کروایا تو یہ بھی سمجھ لے تیری شاداں بھی نہیں بچے گی۔ رحیم داد گردن اٹھائے نہایت سنبھلے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے انداز میں زمیندارانہ تنتنا تھا۔ لالی نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، اس نے کیا کیا؟ میں نے سیف اللہ اور حکیم چشتی کا خون کیا ہے، تو شاداں نے بالے کا۔ رحیم داد نے تیکھی نظروں سے لالی کو دیکھا۔ تو اس راز کو پوری طرح جانتا ہے۔ تو جہانگیرہ کے اس مکان کی کوٹھڑی کو بھی جانتا ہے جس میں تو نے بالے کی لاش دبائی تھی۔ اس نے براہ راست دھمکی دی۔ تو نے لاش ٹھکانے لگانے میں شاداں کی مدد کی تھی۔ اس کو اعانت جرم کہا جاتا ہے۔ رحیم داد نے اپنی قانونی سوجھ بوجھ سے لالی کو مروب کرنے کی کوشش کی۔ اس الزام میں شاداں کے ساتھ تو بھی گرفتار ہوگا۔ تیرے خلاف بھی مقدمہ چلے گا۔ آگے جو کچھ ہوگا وہ تجھے سوچنا ہے۔ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ لالی بہت چکرایا۔ اس نے صورت احوال کے اس پہلو کے بارے میں بالکل نہ سوچا تھا۔ بالا کے قتل کی واردات کو قطعی طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ رحیم داد نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ میں نے تو اپنے بارے میں سوچ لیا۔ یہ بتا، تو نے شاداں اور اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میرے خلاف تو ہر کارروائی کر سکتا ہے، اس میں تعجب کی کوئی گل بات نہیں۔ لالی نے رحیم داد کو خبردار کیا۔ پر شاداں تو تیری گھر والی ہے، تو اسے پیار بھی کرتا ہے۔ پیار نہ کرتا تو اس سے بیاہ کیوں کرتا؟ مجھے شاداں سے کوئی پیار شیار نہیں، رحیم داد نے نہایت حقارت سے کہا۔ میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود ہی میرے پاس آئی تھی اور منتیں کر کے میری حویلی میں نوکرانی لگ گئی تھی۔ اگر ایسی ہی گل بات ہے تو تب تو نے اس سے بیاہ کیوں کیا؟ وہ تو میری ایک ضرورت تھی۔ رحیم داد نے صاف کوئی سے کام لیا۔ مجھے جلد سے جلد بیاہ کرنا تھا، اور اس لیے کرنا تھا کہ زرعی اصلاحات کے تحت حکومت میری سینکڑوں ایکڑ اراضی ضبط کر لیتی۔ اسے بچانے کے لیے مجھے ایک گھر والی چاہیے تھی جس کے نام عارضی طور پر میں اپنی کچھ اراضی علیحدہ کر سکتا۔ گوشواروں کی خانہ پوری کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ رحیم داد بے باکی سے مسکرانے لگا۔ مجھے شاداں ہی ایسی زنانی نظر آئی جسے میں فوری طور پر اپنی گھر والی بنا سکتا تھا۔ سچ پوچھ تو ان دنوں وہ مجھے بہت سونی بھی لگ رہی تھی۔ پر اب تو وہ تیری گھر والی ہے، تجھے اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ لالی نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں سوچنا چاہیے؟
रहीम दाद यकायक भड़क उठा, तेवरी पर बल डालकर बोला, तुझे पता है मैं वट्टा ज़मींदार हूँ, इज़्ज़तदार हूँ। शादा ऐसी कमी ज़नानी को जो मेरी ही हवेली में नौकरानी रह चुकी है कब तक अपनी घरवाली बना कर रख सकता हूँ? मुझे आगे के बारे में भी सोचना है, मुझे अपनी नस्ल ख़राब नहीं करनी। तो क्या तू उसे छोड़ देना चाहता है? बिल्कुल छोड़ दूंगा, बल्कि अब तक तो उसे छोड़ भी चुका होता, पर मस्जिद के मुल्ला ने रोक दिया। कहने लगा जब तक वो हामला है तलाक नहीं हो सकती, शरअ इसकी इजाज़त नहीं देती। रहीम दाद ने अपने इरादे से खुलकर लाली को आगाह किया। मैं तो ये महीना ख़त्म होते ही दूसरा ब्याह करने वाला हूँ। एहसान शाह की एक बेवा बहन की बेटी सलीमा के साथ रिश्ता भी तय हो चुका है। ये एहसान शाह कौन है? लाली ने कुरेद कर पूछा। मेरा बहुत गहरा यार है, इधर का वट्टा और ख़ानदानी ज़मींदार है। रहीम दाद ने निहायत फ़ख्र से बताया। तू उसे नहीं जानता, शादा जानती है। शादा को ये भी पता है कि तू दूसरा ब्याह करने वाला है और उसे तलाक देना चाहता है। मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, पर ऐसा मालूम होता है कि उसे पता चल गया है। रहीम दाद ने कहा, लगता है नादिर खान की घरवाली जन्नत ने उसे ज़रूर कुछ ना कुछ बता दिया है, तभी पिछले कई रोज़ से वो रूठी रूठी नज़र आती है। रात भी नीचे ही के कमरे में रही, यहाँ कम ही आती है। आज सवेरे उसने मुझसे बात भी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो इसी सिलसिले में मुझसे पूछना चाहती थी, पर मैंने उसे टाल दिया। तूने ये भी सोचा तलाक होने के बाद वो अपने बच्चे के साथ कहाँ जाएगी? लाली ने शादा के लिए शिद्दत के साथ जज्बा हमदर्दी महसूस की। उसका चेहरा अफसुर्दा हो गया। उसका तो कोई भी नहीं, वो किसके पास जाएगी, क्या करेगी, कैसे गुजर बसर करेगी? पहले भी तो किसी न किसी तरह गुजर बसर करती थी, आगे भी कर लेगी। रहीम दाद ने मुंह बिगाड़ कर हकारत से कहा, मैंने कोई उसका ठेका ले रखा है? लाली उसके ज़मींदाराना तंतने पर पहले ही भुनाया हुआ था, बराबर ज़ब्त से काम ले रहा था, दिल ही दिल में सुलग रहा था। रहीम दाद की खुली खुदगर्जी के इस मुजाहिरे पर वो एकदम भड़क उठा, दांत पीस कर बोला, बकवास न कर। वो तेज़ी से झपटा और रहीम दाद के सर पर पहुंच गया। खुला हुआ चाकू सामने करके गुस्से से लंबी लंबी सांसें भरने लगा। ये पूरा गर्दन में उतार दूंगा, आवाज़ भी ना निकल सकेगी। उसने चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। तुझे अपनी इज्जत और नस्ल के ख़राब होने का ऐसा ही ख्याल था तो उससे ब्याह क्यों किया? रहीम दाद ने कुछ ना कहा। लाली बिड़बिड़ाता रहा, तेरी तो इज्जत है, उसकी कोई इज्जत नहीं। लाली ने झुंझुला कर रहीम दाद के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। वो संभला भी ना था कि लाली ने उछलकर उसकी कमर पर लात मारी। लात ऐसी करारी लगी कि रहीम दाद लड़खड़ा कर पलंग से नीचे गिर गया। लाली गुस्से से दीवाना हो रहा था, झट उसके सीने पर सवार हो गया। रहीम दाद इस कदर बदहवास हो गया कि मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। लाली की आवाज़ उभरती रही, खूनी, धोखेबाज। उसने हकारत से मुंह बिगाड़ा। कहता है मैं वट्टा ज़मींदार हूँ, इज्जतदार हूँ। मुझे पता है तू कितना इज्जतदार है। आख थू। लाली ने गज़बनाक होकर उसके मुंह पर थूक दिया। मेरी गल तो सुन। रहीम दाद घकियाने लगा। बहुत सुन ली तेरी गल्लां। लाली ने उसके रुखसार पर थप्पड़ मारा। चाकू लहरा कर बोला, तेरे जैसे पापी और कमीने को मैंने जिंदा नहीं छोड़ना। मुझे पहले ही पता था तू मुझे कत्ल करने के इरादे से आया है। रहीम दाद ने आहिस्ता से कहा, पर इसका अंजाम भी सोच ले। उसने लाली को दबी जबान से धमकी दी, इसके बारे में तुझे पहले ही बता चुका हूं। मुझे पता है, सब पता है।
लाली के गुस्से का झाग अब आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगा था। रहीम दाद ने भी उसे भांप लिया। लहजे में रिक्कत पैदा करते हुए उसने लाली से कहा, मुझे जान से मार कर तुझे क्या मिलेगा? लाली खामोश रहा। रहीम दाद ने आजिज़ी से कहा, पहले मेरी एक गल सुन ले, बाद में जो तेरा जी करे करना। लाली बदस्तूर खामोश रहा, मगर रहीम दाद के सीने पर से उतर कर अलहदा हो गया। रहीम दाद उठकर बैठ गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, तू इजाज़त दे तो मंजी पर बैठ जाऊं। बैठ जा, लाली ने मुंह बिगाड़ कर हकारत से कहा। रहीम दाद उठा और एक बार फिर पलंग पर टांगें लटका कर बैठ गया। उसका सारा तंतना और तमतराक काफूर हो गया था। मुंह लटका हुआ था। आंखों में खौफ से साए मंडला रहे थे। बारिश अब रुक गई थी, मगर हवा तेज थी और दरख्तों में सरसराती हुई चल रही थी। रात काली और सुनसान थी। कमरे में खामोशी छाई थी। लैंप की लू हवा के झोंकों से हौले हौले डगमगा रही थी। उसकी घटती बढ़ती रोशनी में दीवारों पर परछाइयाँ लहरा रही थीं। रहीम दाद ने सर उठाया, लाली की तरफ देखा, नरम लहजे में बोला, एक तजवीज़ समझ आती है, पर उसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए होगी। क्या तजवीज़ है? लाली ने दिलचस्पी का इजहार किया। तू शादा से प्यार करता है ना? रहीम दाद ने लाली के चेहरे पर से नजरें हटा लीं। ऐसा कर, तू उसे अपने साथ ले जा। इसमें हम तीनों ही का भला है। रहीम दाद ने खुलकर बात की। ना तू मुझसे बदला लेने के लिए इरशाद इलाही की मदद के बारे में सोचेगा, और ना मुझे शादा और तुझे गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस को बाले के कत्ल का राज बताने की ज़रूरत पड़ेगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुझे तेरी शादा मिल जाएगी। तू अपनी 420 से बाज नहीं आएगा। लाली ने चलकर उसे गाली दी। मैं तेरा मतलब ठीक तरह समझ गया। उसने नफरत से रहीम दाद को देखा। ऐसा करके शादा से तेरा पिंड भी छूट जाएगा। शान से नया ब्याह करेगा, वट्टा जमींदार बनकर ऐश करेगा। उसका लहजा तल्ख हो गया। यही चाहता है ना? रहीम में तू बहुत कुत्ती चीज़ है। पहले मेरी पूरी गल तो सुन ले। रहीम दाद ने गालियां सुनकर भी किसी बरहमी का इजहार ना किया। संभले हुए लहजे में बोला, मेरे पास तेरे 4000 रुपए हैं, वही जो तूने हमियानी में रख कर मुझे नहरबारी तो आपके टिब्बों पर दिए थे, याद है ना? क्यों नहीं याद? बिल्कुल याद है। लाली ने गर्दन हिलाकर कहा, यह भी कोई भूलने वाली बात है। मैं सिर्फ 4000 नहीं, तुझे 10,000 रुपए दूंगा। रहीम दाद ने खुलकर अपनी तजवीज़ लाली के सामने रखी। इतने रुपए से तू कोई भी धंधा शुरू कर सकता है, शादा के साथ आराम से रह सकता है। तजवीज़ माकूल थी और दिल को भी लगती थी, मगर लाली भी कम काइयाँ और घाग ना था। जेल में हर तरह के जराइम पेशा अफराद के साथ अरसाए दराज तक रह चुका था। उनमें चोर उचक्के, सट्टेबाज, जालसाज, ब्लैकमेलर सभी शामिल थे। निहायत फ़ख्र से उसे अपने कारनामे सुनाते थे, तरह तरह के गुर और हथकंडों से आगाह करते थे। उस वक्त लाली का पल्ला भारी था। रहीम दाद दबा हुआ था। लाली ने उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर सौदेबाजी करना चाहिए। कहने लगा, 10,000 तो बहुत कम हुए, 50,000 तो दे। लाली का गुस्सा रफा हो चुका था। लहजे में संजीदगी पैदा हो चुकी थी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रहीम दाद ने भुन्ना कर अपने फौरी रद्द अमल का इजहार किया। दिमाग मेरा खराब हो गया या तेरा? लाली ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तू इतना बड़ा जमींदार है, तेरे पास सैकड़ों कल्ला ज़मीन है, रहने को शानदार हवेली है,
सवारी को जीप है, काम करने को नौकर चाकर हैं। क्या नहीं है तेरे पास, ऐश कर रहा है। तू अपनी गल कर, रहीम दाद ने समझाने के अंदाज में कहा। इस दफ़ा उसका रवैया नरम था। लालच में ना पड़, बाद में पछताएगा। उसने लाली को नज़र भर कर देखा। सोच ले। सोच लिया। लाली ज़रा मरूब ना हुआ। सोचना तो तुझे है। उसने पतेरा बदला, रहीम दाद को दहशत ज़दा करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ लाश ठिकाने लगाई थी, और लाश ठिकाने लगाने या दबाने की सज़ा फांसी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की सज़ा होगी। पहले भी काट चुका हूँ, एक बार और काट लूँगा। उसने रहीम दाद को खुलकर ख़तरे से खबरदार किया। तूने तो एक से ज़्यादा कत्ल किए हैं, और कत्ल की सज़ा फांसी ही होती है। गलत कह रहा हूँ मैं? तूने नहीं, पर शादा ने तो बाले का कत्ल किया है। रहीम दाद ने भी लाली की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तू मुझसे ज़्यादा कानून जानता है। लाली का लहजा बदस्तूर तीखा था। उसने रहीम दाद पर रौब जमाने की कोशिश की। तुझे पता है कि जनानी के लिए कत्ल की सज़ा फांसी नहीं होती। मैं एक बार नहीं, कई बार जेल जा चुका हूँ। मुझे कानून के बारे में तुझसे ज़्यादा पता है। मैंने तो कभी किसी जनानी को फांसी पर लटके ना देखा ना सुना। उसके होंठों पर जहरखंद नमूदार हुआ। तू अपनी फिक्र कर। तू कत्ल आमद के जुर्म में दफ़ा 302 के तहत फांसी से नहीं बच सकता। इसका फैसला तूने नहीं, अदालत ने करना है। रहीम दाद ने अपने दिफा में तावील पेश की, मगर लाली की बातें सुनकर वो दहल गया था। उसे मतलब अंदाजा न था कि कानूनी सूझबूझ के मामले में लाली उससे किसी तौर कम न था। लाली की धमकी का उस पर खातिर खा असर हुआ था। उसने लाली से उलझने की कोशिश न की। मामला फहमी से काम लिया, लहजे में नरमी पैदा करते हुए गोया हुआ। कड़वी और झगड़े की गलबात करने से ना तुझे फ़ायदा होगा, ना मुझे, और ना ही शादा को। ऐसी बात कर जिसमें तीनों का भला हो। मैं भी यही चाहता हूँ। लाली ने भी मसलहत अंदेशी से काम लिया। सीधी सीधी मामले की बात की। तूने चौधरी नूर इलाही के क्लेम के ज़रिए लाखों रुपए की मतरूका जायदाद अलॉट करा ली। तू इसमें से मुझे 50,000 भी नहीं दे सकता। तुझे पता नहीं, ये जायदाद मैंने सिर्फ अपनी कोशिश से अलॉट कराई है। चौधरी नूर इलाही तो बरसों भाग दौड़ करने और सरकारी दफ्तरों के दिन रात चक्कर काटने के बाद भी 12.5 कला गुजारा अराजी भी अलॉट ना करा सका। रहीम दाद ने वजाहत की। वो तो बिल्कुल मायूस हो चुका था। तख्त हज़ारा के नज़दीक एक चक में पड़ा खून थूकता था। उसे टीबी हो गई थी, बिल्कुल अकेला था। सिसक सिसक कर दम तोड़ रहा था। लाली खामोश बैठा रहा। उसने रहीम दाद को ना रोका और ना ही टोका। वो उसकी बातें तवज्जो से सुनता रहा। बात कहते कहते रहीम दाद ने कारोबारी पतेरा बदला। मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, लाली, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोलना। उसने यकीन दिलाने की कोशिश की। सच्ची गल बात यह है कि मेरे पास इतना रुपया नहीं जितना तू मांग रहा है। उसने कदरे तामुल किया। मैं कोशिश करके किसी न किसी तरह 25,000 रुपए का बंदोबस्त कर सकता हूँ। उसका लहजा नरम और सरपरस्ताना हो गया। मेरा कहना मान, इतना रुपया ले ले। इससे तू कोई भी अच्छा कारोबार कर सकता है। चोरी डकैती छोड़, इसमें हरदम जेल जाने का खतरा सर पर मंडलाता रहता है। तू कब तक जेल काटता रहेगा? नेक बंदा बनने की कोशिश कर। मैं तो तुझे अभी तक अपना यार बेली समझता हूँ। उसका रवैया नासिहाना हो गया। उसमें अपनायत थी, बेतकल्लुफ़ी थी। तू लाहौर में ना रहना, पुलिसिये तुझे आराम से रहने नहीं देंगे। तरह तरह से तंग करते रहेंगे। पहले तो यही पूछेंगे
کہ کاروبار کرنے کے لیے تیرے پاس روپیہ کہاں سے آیا؟ میری گل بات کا مطلب تو سمجھ رہا ہے نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں۔ لالی نے اختلاف رائے نہ کیا۔ تو اپنی بات پوری کر۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ تو کراچی چلا جا۔ وہاں نہ تجھے پولیس کا ڈر ہوگا نہ جان پہچان والوں کا۔ رحیم داد نے لالی کو رسان سے سمجھایا۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، وہاں تو آرام سے کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر سکتا ہے۔ وہ کھل کر بے تکلفی سے مسکرایا۔ شاداں کو اپنے ساتھ لے جا کر عیش کر، آرام سے زندگی بسر کر۔ جو کچھ تو نے اب تک کیا اسے بھول جا، آگے کی سوچ۔ رحیم داد نے لالی کو شیشے میں اتارنے کے لیے ہر نفسیاتی حربہ اور ہر گر آزمایا۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوا۔ لالی اس کی تجویز پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رحیم داد نے اسے زندگی کے ایسے نشیب و فراز سمجھائے اور ایسی فضا پیدا کی جس کے حصار سے باہر نکلنا مشکل تھا۔ لالی خاموش بیٹھا رہا اور گردن جھکائے سوچتا رہا۔ رحیم داد نے اسے خاموش پایا تو کسی قدر بے چین ہو کر پوچھا، لالی تو کس سوچ میں پڑ گیا؟ تجھے میری تجویز منظور نہیں؟ سوچ رہا ہوں، میں نے تیری تجویز مان بھی لی، پر سوال یہ ہے کہ شاداں بھی اس کے لیے تیار ہوگی کہ نہیں؟ لالی نے کھل کر اپنے تذبذب کا اظہار کیا۔ اس بارے میں پہلے اس سے بھی پوچھنا ہوگا، میں نے غلط تو نہیں سوچا؟ لالی کی بات دل لگتی تھی۔ رحیم داد نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ لالی بھی خاموش تھا۔ باب نمبر 52 اگلی ویڈیو میں سنیں۔